ये हम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद उसको डिस्कस करते हैं। Because we added to the book clause saying that the user is forced to declare whether this is a paperback or a hardback. Well, that means that there are now errors. So let's go ahead and fix those errors. So yes, we still have the sequel आगे चले गए हम, with use of the और or पीछे operator. The or operator will be used to force the user to choose between two fixed options. Because we've added to the book clause saying that the user is forced to declare whether this is a paperback or a hardback, well, that means that there are now errors. So let's go ahead and fix those errors. So yes, we still have the sequel option, but we're not going to use that in this case. So we are forced to choose between hardback and paperback. तो यानी कि और करने का कॉन्सेप्ट है कि जी ये या ये, उसमें से वो फॉरवर्ड स्लैश लाइन लगाते हैं, उससे वो और का कॉन्सेप्ट आ जाता है। In this video, we've looked at how we can define our own domain-specific language, and within that DSL, we can set up records. Those records can be either primitive attributes like strings and integers, or more complex attributes like references to other records. And also, we've seen that we can apply multiplicity, that we can apply different options within the constructs of the language, and things like that. There's actually a lot more that can be done with DSLs, but I don't really want to go any deeper into the definitions of DSLs at this stage. But what I would like to do is show you in this video how you can define your own validation of the content that the user has entered. Firstly, let's have a look what the problem is. 1, 2, 3, 7. And its title is nothing. And there's some pages. It's a hardback. That's fine. There are no errors, but obviously it's not fine because the title is empty. तो बेसिकली ये बता रहा है कि आपने वैलिडेशन भी इसके अंदर कर सकते हैं। वैलिडेशन के लिए आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे टाइटल ब्लैंक नहीं होना चाहिए, जी हम चाह रहे हैं टाइटल ब्लैंक नहीं होना चाहिए, तो वो बता रहा है टाइटल ब्लैंक, उसको कैसे चेक कर सकते हैं आप। See that there's a package called the validation. So if you go into there, then open this file, the validator, you will see that Xtext has generated for us an example of how we can build our own validation. So first thing we need to do is to let it know that it's a checking method, is use the annotation, check and the control space to get that to finish. And then we give the method a name. Check title is not empty. And that will take a parameter which will be a book. It's a book that we're checking. So we need book, control space, and it's this one here. Pull the parameter book. Down inside here, what we want to do is say, we can take this as an example. If book get title is empty, so that's our error condition. And then there's a method. ये असल में जो चीजें आपको नजर आ रही हैं, इसलिए नजर आ रही हैं कि वो
वो जैन मॉडल ने ना सारा कोड भी जनरेट कर दिया, वो सारा कोड भी जनरेट कर दिया, इसलिए वो कोड से रिलेटेड चीजें इज एम्प्टी और गेट टाइटल, ये वो चीजें जैसे हमने जनरेशन की थी, सो वैसे चीजें भी अवेलेबल हो जाती हैं। Validator error, and that takes two parameters. The first one is the error string. So that would be title cannot be empty. And then the second parameter is the what's called the feature. What it means is it's telling where in the document the error actually is. And taking the example again, we've got demo DSL package. It's book. So that gives it the scope of the error. So let's save that. Sometimes because we've actually only altered the Java, sometimes it doesn't need restart. So let's try again now. Let's make a new record. And this time, let's give it an empty title. And as you can see, it's complaining already. And it says, well, first of all, let's make it a valid record otherwise. So we'll give it a number of pages. Going R back. Right, now the only error maybe is this one, and it says title cannot be empty. Firstly, let's have a look what the problem is. Let's give this book a title. And let's give it a sequel. And let's say that this is a sequel of J1237, which is itself. So अपना सीक्वल नहीं होना चाहिए, ये चेक लगाना है अब हमने कि एक बुक अपना ही सीक्वल ना हो किसी और बुक को। again, it takes a book parameter. And the error condition is if book dot get named equals book dot sequel of dot get named. The sequel of so. And again, the second parameter is the demo package. And this time we want the error to appear on the sequel of. So we'll save that again now. And now we can see that we do have an error. And the error message is the book cannot be a sequel of itself. So that's good. That's what we want. चले जी, बस ये वीडियो थी छोटी छोटी से, आपको जनरल एक आइडिया होगा एनवायरनमेंट कैसी है। अब उसको हम फाइनल टचेस कर लेते हैं। ये हमारी डिस्कशन हो रही थी कि ये एडिटर है, एडिटर में जब हमने कोड लिखा है तो अब हमने इसकी मैपिंग लिखी है पहले एक्सटेंड में, और जिसकी वजह से ये सोर्स जेन का एक फोल्डर है, इसके अंदर ये डॉट टेक्स्ट फाइल जनरेट हो गई है, तो वो उसमें भी इसके अकॉर्डिंगली कोड टेक्स्ट फाइल का कोड जनरेट हो रहा है। अच्छा जी, अब हम थोड़ा ग्रामर को, कुछ ग्रामर तो हमने वीडियो में देख ली, कुछ ग्रामर हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले ये देखिए ग्रामर कीवर्ड यूज हो रहा है। ग्रामर कीवर्ड है
देन पर्सन टास्क डॉट टास्क DSL, ये जब हम प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं जो नाम उस वक्त देते हैं हमें वो नाम यहाँ पे आ जाता है, वो हमारी ग्रामर का नाम बन जाता है। ग्रामर डेफिनेशन विद ऑफ टेक्स्ट एक्सटेक्स्ट कॉमन टर्मिनल्स। अब ये है कि कुछ ग्रामर इन्होंने ऑलरेडी डिफाइन की हुई है यूटिलिटी किस्म की, जैसे ID कीवर्ड है, ये कहाँ डिफाइन हुआ है, वो टर्मिनल्स के अंदर डिफाइन हुआ है। स्ट्रिंग कहाँ डिफाइन हुआ है, टर्मिनल्स के अंदर डिफाइन हुआ है। तो ये ग्रामर है जो ऑलरेडी लिखी हुई है जिसको हम रीयूज करते हैं, दैट्स व्हाई यहाँ इट इज रिटन ग्रामर रीयूज। आप इसको कंट्रोल लेफ्ट क्लिक से खोल सकते हैं टर्मिनल की ग्रामर को, उसको देख सकते हैं कौन सी चीज कैसे डिफाइन हुई हुई है। अच्छा, उसके बाद है जनरेट टास्क DSL, और ये उसकी आ जाएगी URI। अच्छा, होता क्या है कि हर ग्रामर को जब हम आर्टिफैक्ट जनरेट करते हैं साथ ही इसका इक्विवेलेंट ई-कोर मॉडल भी जनरेट हो जाता है। तो मैं दिखाता हूँ आपको, ये उस मॉडल की बात हो रही है कि ये टास्क DSL के नाम से मॉडल जनरेट होगा और ये उसकी URI होगी। ये देखें, ये डोमेन मॉडल था, डोमेन मॉडल के अंदर ये मॉडल है, मॉडल के अंदर ये आपको जनरेटेड एक फोल्डर बना है और इसके अंदर ये इसका इक्विवेलेंट ई-कोर मॉडल, जैसे ही हम आर्टिफैक्ट्स जनरेट करते हैं तो ये उसका इक्विवेलेंट ई-कोर मॉडल जनरेट हो जाता है। और इसको अगर हम चाहें तो जैसे राइट क्लिक किया फॉर एग्जांपल और मैं यहाँ से आई कैन इनिशियलाइज ई-कोर डायग्राम, लेकिन ई-कोर डायग्राम इनिशियलाइज करने के लिए आपको ई-कोर के टूल्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे एक्लिप्स मार्केट प्लेस से। ई-कोर एडिटर टूल्स वो करेंगे तो ये वाला मेन्यू आएगा आपका। ई-कोर ये हुआ है ई-कोर टूल्स ई-कोर डायग्राम एडिटर 4 इंस्टॉल्ड। ये इंस्टॉल होगा तो फिर ये वाला मेन्यू आएगा आपका कि इस पे राइट क्लिक करके यू विल बी एबल टू इनिशियलाइज द ई-कोर डायग्राम। इससे ई-कोर डायग्राम इनिशियलाइज हो जाएगी और आप यू कैन सी दैट डायग्राम मैंने जनरेट की थी, नजर नहीं आ रही कहाँ गायब हो गई है। इनिशियलाइज ई-कोर डायग्राम, ये ई-कोर डायग्राम है जो कि जनरेट हो गई है। और इसका मैं जरा कलर चेंज कर दूं वाइट, ये ब्लैक ने काम खराब ही किया है। ये भी वाइट हो गया। सिलेक्ट कनेक्टर्स और ये वाइट हो गया। ये तो ये डोमेन मॉडल है और ये बाकी चीजें हैं, तो इस तरीके से ये इसका आप इक्विवेलेंट ग्रामर का और इसका इक्विवेलेंट मॉडल होता है। अब इसकी मैपिंग क्या होती है, इनमें कैसे लिंक होता है, ये मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ आपको। ये जो कॉलन के साथ आते हैं, टास्क कॉलन, पर्सन कॉलन कॉलन, प्लानिंग कॉलन, दीज आर कॉल्ड पार्सर रूल्स। और ये जो अब सिंगल कोट में डालते हैं ब्लू कलर में नजर आ रहा है, दीज आर कॉल्ड कीवर्ड्स, जो कीवर्ड वहां पे यूज होंगे, ये हमने वीडियो में भी देख लिया। उसके बाद अगर ये प्लस इज इक्वल टू लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये वेरिएबल है, स्मॉल टी के साथ टास्क, दिस इज वेरिएबल, और ये उसका रूल है, तो ये वेरिएबल इस रूल को कंज्यूम करेगा। इस तरह ये वाला वेरिएबल इस रूल को कंज्यूम करेगा। इसका क्या मतलब है कि प्लानिंग है, प्लानिंग के अंदर या तो ये फॉरवर्ड स्लैश लगा हुआ है, या तो आपने पर्सन डालना है या टास्क डालना है। अब पर्सन को हमने यहाँ पे हमने डिफाइन किया कि पर्सन का मतलब है कि आपने पर्सन कीवर्ड यूज करना है,
और फिर आगे कोई नेम आईडी डालनी है, तब ये सिंटैक्स ठीक होगा। और अगर आप टास्क यूज करते हैं तो टास्क का एक अपना सिंटैक्स है, पहले टास्क कीवर्ड लिखना है आपने, फिर आपने कोई एक्शन डालना है, एक्शन जो कि नीचे डिफाइन हुआ है, एक्शन कॉलन लिखा हुआ है, लंच एक्शन और मीटिंग एक्शन और पेपर एक्शन और पेमेंट। इन चार में से कोई एक ऑप्शन आपने यहाँ पे डालना होगा टास्क के बाद। इसके बाद पर्सन कीवर्ड यूज करना है और उसके बाद आपने पर्सन यूज करना है। पर्सन का इंस्टेंस, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है कि पर्सन अगर ऑलरेडी आपने डिक्लेयर किया हुआ है तो उनमें से कोई एक इंस्टेंस आप यहाँ पे, एडिटर आपको बताएगा जी कौन सा इंस्टेंस आपने यहाँ पे मैप करना है टास्क के साथ। इसके बाद प्रायोरिटी का कीवर्ड डालना है आपने, उसके बाद अपने इंटीजर वैल्यू को डालनी है 1 2 3 4 5 प्रायोरिटी के तौर पे। तो इस तरह इसका सिंटैक्स टास्क का बनेगा। इसके बाद आ रहा है ड्यूरेशन, कि टास्क के बाद आखिरी आपने आखिर में ये ऑप्शनल है, क्वेश्चन मार्क नजर आ रहा है आपको, ड्यूरेशन डालनी ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप डालेंगे ड्यूरेशन तो फिर आपको ये इसकी इंटीजर में इसकी ड्यूरेशन लेंथ डालनी पड़ेगी और साथ ही टाइम यूनिट डालने पड़ेंगे, जबकि टाइम यूनिट एनुमरेशन की फॉर्म में डिफाइंड है। आप मिनट, आवर या मिन डालेंगे या आर डालेंगे, इस तरीके से आप इसको करेंगे। तो there are three kinds of assignment operators. One with equal sign, other with plus is equal to equal sign, and then question mark equal sign. Plus के साथ क्या होता है? It is simple, straightforward assignment and is used for feature which take only one element. Is equal to one operator में क्या होता है कि it is expecting multi-valued features and adds the value to the right hand side of the feature, which is यानी कि लिस्ट बनाने के लिए यूज हो रहा होता है, लिस्ट। और क्वेश्चन मार्क इक्वल टू होता है ये बुलियन असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, कहीं आपने ट्रू फॉल्स सजेस्ट करना है तो आप फिर ये वाली असाइनमेंट यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखें वो चीजें यूज हो रही हैं, यहाँ पे हमने ब्रैकेट में ये स्टैरिक यूज किया है, ये कार्डिनलिटी 0 और मोर की है, यानी कि आप कुछ भी ना डालें प्लानिंग में, या कोई एक चीज डाल सकते हैं, पर्सन या टास्क, या कुछ भी ना डालें, स्टिल इट विल बी वैलिड। प्लानिंग लिखने के बाद एरर नहीं आएगा। इसके बाद कार्डिनलिटी आपको प्लस नजर आ रही है, प्लस का मतलब है कि ये एक या एक से ज्यादा, जैसे आपने बताया था ना अभी, किसने क्वेश्चन किया था कि स्क्वायर ब्रैकेट के साथ ज्यादा हो सकते हैं, तो ये देख लें प्लस लगा हुआ है, इसका मतलब है एक या एक से ज्यादा आप अटैच कर सकते हैं यहाँ पे पर्सन्स एक टास्क के साथ। अगर यहाँ पे आप ब्रैकेट से क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब ये ऑप्शनल है, या आपको इसको स्किप कर सकते हैं। इसके बाद ये आपको वर्टिकल बार्स नजर आ रही हैं, ये अल्टरनेटिव बता रही है कि एक एक्शन, बेसिकली देयर आर 4 काइंड ऑफ एक्शंस, एनी वन इज रिक्वायर्ड टू बी यूज्ड। तो ये कार्डिनलिटीज है, 4 काइंड ऑफ कार्डिनलिटीज है। एग्जैक्टली वन, कुछ भी ना लिखें तो एग्जैक्टली वन होता है। अगर 0 और 1 करना हो तो क्वेश्चन मार्क है, 0 और मोर करना हो तो मल्टीप्लाई का साइन है, 1 और मोर करना है तो प्लस का साइन है, ये हमने देख चुके हैं पीछे। अच्छा, फिर ये आपको एक चीज ये नजर आती है कि ये जो ब्रैकेट साइन लगता है, ब्रैकेट साइन ये बता रहा होता है कि ये जो ब्रैकेट साइन के अंदर चीजें, दीज विल बी कंटेन्ड इन द प्लानिंग, ये प्लानिंग के अंदर कंटेन करेंगी, तो कंटेनमेंट को शो कर रही होती है ये ब्रैकेट जब लगाते हैं हम यहाँ पे। ये स्क्वायर को हम क्रॉस रेफरेंस कहते हैं, जो पहले ने डिस्कस कर लिया हुआ है। ये भी रूल्स ही है लंच एक्शन, लेकिन ये अनअसाइंड रूल है, इज इक्वल टू साइन कहीं नहीं यूज हुआ इनके साथ, तो ये इनकी एक कैटेगरी है अनअसाइंड रूल की। और ये है असाइनमेंट रूल के रूल, लोकेशन इज इक्वल टू आईडी, इसका मतलब है लोकेशन ऑफ अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू को असाइन कर सकते हैं लोकेशन को। अच्छा, अब ये इसका एक ये ग्राफिकल सिंटैक्स भी जनरेट हो जाता है। ये देखें, इसका ग्राफिकल सिंटैक्स जनरेट हुआ है। पहले ये प्लानिंग कीवर्ड यूज होगा सबसे पहले, फिर आपने कोई आईडी डालनी है प्लानिंग की, ये आईडी डालनी है आपने। आईडी के बाद फिर ये ऑप्शनल है, आप डायरेक्टली ये एनोनिमस इज ऑप्शनल, तो इसलिए एनोनिमस के लिए को बाईपास भी किया हुआ है नीचे से, एनोनिमस को बाईपास किया हुआ है कि आप एनोनिमस ना भी यूज करें, स्टिल इट इज बिकॉज इट इज, तो ये ऑप्शनल को डिपिक्ट करिए ये चीज। और उसके बाद पर्सन या टास्क, ये दो, या पर्सन यूज करें या टास्क यूज करें या कोई भी ना यूज करें,
ठीक है, आप और स्टेरिक का मतलब जीरो, तो इसका मतलब है कि आप बिल्कुल टोटली बाईपास भी कर सकते हैं इसको। तो ये जो इसका सिंटैक्स होता है, इसका एक अलग से एडिटर भी अवेलेबल है जो ये उसके मुताबिक इसका ये सिंटैक्स को जनरेट कर देता है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब मैं इसकी मैपिंग आपको बता रहा हूँ कि इसकी जो ग्रामर की मैपिंग इसके ई कोर मॉडल के साथ किस तरह हो रही होती है। तो क्या होता है कि हर रूल की एक ई क्लास बनती है, ई क्लास का इंस्टेंस बनता है हर रूल का। एक प्लानिंग की ई कोर क्लास बन गई है, एक ये आपकी टास्क की ई कोर क्लास नजर आ रही है, पर्सन की ई कोर क्लास नजर आ रही है, ये एक्शन की। अब एक्शन को देखें, जनरलाइजेशन यूज हो रही है यहाँ पे। वन एक्शन कैन बी आइदर पेमेंट एक्शन, पेपर एक्शन, मीटिंग एक्शन। तो ये यहाँ पे एक्शन कैन बी लंच एक्शन, मीटिंग एक्शन। तो ये क्या होगा, इस तरह की चीज की ये इस तरह की एक जनरलाइजेशन बन जाती है। टास्क के अंदर आप देखें तो इसके अंदर कुछ नजर आ रहे हैं, तो आपको नजर आएगा ये एक वेरिएबल है, प्रायरी इंटीजर टाइप नजर आ रहा है आपको, ये डीएल इंटीजर नजर आ रहा है, फिर यूनिट जो है आपका ये प्रायरी इंटीजर नजर आ रहा है, डीएल और इंटीजर। तो ये जितने इसके वेरिएबल हैं, वेरिएबल इसके अंदर एज एन एट्रीब्यूट आ जाते हैं। ठीक है, अभी हम रेफरेंसेस नहीं हमने डिस्कस किए, यहाँ से रेफरेंसेस देखते हैं। अब ये देखिए, हम कह रहे हैं कि प्लानिंग कंटेन्स आइदर पर्सन और टास्क और नथिंग। तो आप ये देखिए, प्लानिंग में कंपोजिशन का सिंबल यूज हो रहा है। प्लानिंग कैन कंपोज जीरो और मोर पर्सन्स, प्लानिंग कैन कंपोज जीरो और मोर टास्क। और ये जो पर्सन्स है, पर्सन्स ये वेरिएबल जो है ना, ये रोल बन जाता है यहाँ पे, ये टास्क बन जाएगा, इसका रेफरेंस का नाम बन जाएगा। ठीक है जी। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो है टास्क, ये टास्क का वेरिएबल ये रेफरेंस नेम बन गया। यहाँ पे पर्सन्स का वेरिएबल टास्क रेफर कर रहा है। अब यहाँ पे कंपोजिशन नहीं है टास्क और पर्सन के दरमियान में, क्योंकि पर्सन टास्क जो है वो पर्सन को रेफर कर रहा है, यानी उससे लिंक हो रहा है, इसलिए यहाँ पे कंपोजिशन नहीं है। तो ये आर्टिफैक्ट्स हैं जो जनरेट हो जाते हैं जब आप जनरेट आर्टिफैक्ट्स करते हैं। इसमें टेस्ट यूनिट टेस्ट केसेस जनरेट हो जाते हैं। यूजर इंटरफेस का प्रोजेक्ट होता है जो कि एडिटर जनरेट करता है, और यूनिट इंटरफेस के भी टेस्ट जनरेट हो जाते हैं। अब ये जो डॉट एक्सटेक्स फाइल है, इसका ये एक्सटेक्स एडिटर खोला हुआ दिखा रहा हूँ, डॉट एक्सटेक्स फाइल का, जो कि ग्रामर डेफिनेशन है। इसके बाद ये जनरेट डॉट एक्स डीएसएल न्यू फाइल है, और इसमें ये आपको नजर आ रहा है कि फॉर्मेटिंग की फाइल है। अच्छा, फॉर्मेटिंग भी आप अपनी कस्टमाइज कर सकते हैं। तो फॉर्मेटिंग आप इस फाइल के अंदर एक्सप्लेन करते हैं, जैसे ये यहाँ पे फॉर्मेटर डॉट एक्सटेंड की फाइल है जो इसके अंदर पड़ी हुई है। उसके अंदर आप फॉर्मेटिंग वगैरह अपनी डिफाइन कर सकते हैं, कोई इंडेंटेशन करनी है, कहीं चीज कोई लाइनें आगे पीछे वो एडजस्ट करनी है फॉर्मेटिंग की, वो कर सकते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि ये जो एक्सटेक्स ग्रामर होती है, इसका इक्विवेलेंट मॉडल भी जनरेट हो जाता है, और ये आपस में इक्विवेलेंट होते हैं, इसलिए इक्विवेलेंट का ये एरो डाला हुआ मैंने। सो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ एक्सटेंड। अब एक्सटेंड जो है ये यूज होती है फॉर कोड जनरेशन, जो आप लिखते हैं उसके लिए जावा जनरेट करने के लिए। तो इसका ये समझ लें कि ये एक डीएसएल है जो कि जावा के ऊपर लिखी गई है, जावा के ऊपर लिखी गई है, और एक्सटेंड इज 100% compatible with Java. Extend is 100% and it is far simpler than Java. नहीं, ऑटोमेटिक नहीं हो रही, हमने मैपिंग लिखी है।
हाँ मैपिंग लिखी है हमने, वो मैंने आपको बताया, मैंने मैपिंग लिखी है हमने। ये देखिए मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। यहाँ पे एक्सटेंड फाइल के अंदर मैपिंग लिखते हैं ना हम। ये मैपिंग लिखी हुई है हमने। ये मैपिंग है जो कि जावा का कोड जनरेट कर रही है। एक एक मेथड होता है जो आपने इम्प्लीमेंट करना होता है, समझ आइए ना। ये मैपिंग खुद ब खुद नहीं हो रहा है, आपने बताना है कि टेक्स्ट फाइल जनरेट करनी है, जावा कोड जनरेट करना है, क्या जनरेट करना है आपने वो बताना ही है। मैपिंग लिखनी है आपने एक्सटेंड में, इसलिए एक्सटेंड बता रहा हूँ आपको कि अब एक्सटेंड पे क्या सिंटैक्स है, मोटा मोटा वो बताऊंगा मैं। जीरो इंटरऑपरेबिलिटी इश्यूज है जावा के साथ, ये बिल्कुल समझे कि जावा के साथ 100% कंपेटेबल है। जावा का कोड आप इसके अंदर लिख सकते हैं, इसको जावा में यूज कर सकते हैं। इसका एक तो सिंटैक्स हम बता रहे हैं कि जावा में यूं लिखते हैं सिंटैक्स, हम काफी बड़ा सिंटैक्स लिखते हैं। फॉर एग्जांपल लिस्ट हमने डिफाइन करनी है, फाइनल लिंक लिस्ट, लिस्ट न्यू लिंक लिस्ट स्ट्रिंग, जबकि इसमें हम इसको बिल्कुल शॉर्ट कर देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में ये लिंक लिस्ट वगैरह उसको दोबारा डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होती, सिंपली आप लिस्ट लिखेंगे यहाँ पे और राइट साइड लिखेंगे तो आपका ये लिस्ट डिक्लेयर हो जाएगी। तो शॉर्ट सिंटैक्स है इसका। इसी तरह जो होती है कि एरेज आर ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड इनटू लिस्ट। एरे यहाँ पे स्ट्रिंग एरे बनाई है, लेकिन इसको हमने लिस्ट को असाइन करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये एरे इस लिस्ट में कन्वर्ट हो जाती है। इसमें कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट है। Extend class can define any number of constructors. Unlike Java, you do not have to repeat the name of the class. ये जैसे क्लास माई क्लास है, यहाँ पे आपने न्यू लिख देंगे तो वो उसको पता है कि ये कंस्ट्रक्टर है, क्लास का नाम रिपीट करने की जरूरत नहीं है जैसे जावा में करते हैं हम, सिंपली न्यू लिख देते हैं। हाँ कर सकते हैं ना, न्यू के अंदर पैरामीटर पास कर दें, लेकिन क्लास का नाम रिपीट नहीं करना पड़ता। अच्छा ये डिफरेंट वेरिएबल्स के सिंटैक्स है। इंटीजर काउंट 1, तो ये तो सिंपल सिंटैक्स है जावा वाला। स्टैटिक बुलियन डीबग फाजी भी ठीक है। अब ये देखें वी ए आर नेम इज इक्वल टू एफ ओ ओ, इसमें हमने डेटा टाइप नहीं बताई, तो ये डेटा टाइप इन्फर कर लेगा। जनरली ये पाइथन में तकरीबन इस तरह हो रहा होता है कि आपने ये टेक्स्ट दिया स्ट्रिंग, तो ये वेरिएबल ये स्ट्रिंग टाइप बन जाएगा। वैल्यू यूनिवर्सल 42, तो ये बन जाएगा इंटीजर टाइप बन जाएगा। अब वेर और वैल ये दो चीजें इसमें कीवर्ड आ रहे होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है? ठीक है, एक 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 फाइनल होता है, एक फाइनल होता है और एक वो होता है। इसमें यहाँ लिखा हुआ है, मैंने कहाँ लिखा है, वेर इंट्रोड्यूस नॉन फाइनल वैल्यू, यानी कि वेर के साथ जो चीज डिक्लेयर करेंगे उसको आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन वैल के साथ जो चीज करेंगे वो एक तरह का कांस्टेंट डिक्लेयर होगा। फिर इसमें एक्सटेंशन मेथड का कॉन्सेप्ट होता है, और ये बेसिकली जावास्क्रिप्ट में इस तरह की चीज होती है कि आप फॉर एग्जांपल ये एक मेथड है जावा का, स्ट्रिंग एक्सटेंशन डॉट टू फर्स्ट अपर, और उसमें स्ट्रिंग पास करते हैं हम, तो क्या होगा कि हेलो फर्स्ट अपर के साथ में कन्वर्ट हो जाएगी, कैपिटल एच के साथ हेलो हो जाएगी। लेकिन इसके अंदर आप हेलो की स्ट्रिंग लिख के और उसका साथ टू अपर फर्स्ट यूज कर सकते हैं। तो ये आपको लगता है ऐसे है कि जैसे ये स्ट्रिंग का अपना मेथड है, ये स्ट्रिंग का मेथड है, जबकि स्ट्रिंग का मेथड नहीं है। ये बेसिकली एक मेथड के अंदर हम स्ट्रिंग पास कर रहे हैं। तो ये इसमें एक इस तरह की चीज है, ये जावास्क्रिप्ट में भी इस तरह होता है।
उस पर लैम्डा एक्सप्रेशन तकरीबन सारी लैंग्वेजेस में आ गया है। तो टू मेक इट कंपैटिबल विद जावा लैम्डा एक्सप्रेशंस, लैम्डा एक्सप्रेशन का सिंटैक्स भी दिया है, विच इज बेसिकली जिसको हम एरो फंक्शंस कहते हैं पाइथन में, या जावास्क्रिप्ट में एरो फंक्शंस कहते हैं उनको। इसमें लैम्डा फंक्शंस की टर्म यूज हो रही होती है, तो ये वो कॉन्सेप्ट है। ये चीज डिफरेंट है, अरे बड़ी पावरफुल है एक्सटेंड में, कि आप इसके अंदर टेम्पलेट, जैसे एक्सीलियो में टेम्पलेट हम डिफाइन करते हैं एक्सीलियो में, और फिर हम उसके मुताबिक चीजें जनरेट होती हैं। तो इसमें भी आपको ये जो चीजें आपको शेडेड फॉर्म में नजर आ रही हैं, ये टेक्स्ट है, वो टेक्स्ट है जो कि एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। और इसके अलावा जो चीजें वो प्लेस होल्डर्स हैं, वो फिर मॉडल से चीजें आएंगी और उसके मुताबिक ये चीजें प्रिंट होंगी। तो इसके लिए एक सिंटैक्स टिपिकल यूज होता है टेम्पलेट में, ये ट्रिपल सिंगल कोट का। ट्रिपल सिंगल कोट का सिंटैक्स यूज होता है। आपको नजर आ रहा है कि ये एक हमने मेथड डिफाइन किया है सम HTML, और इसकी बॉडी लिखने के लिए हमने क्या किया, ट्रिपल सिंगल कोट डाला है। तो ये स्टार्टिंग बॉडी स्टार्ट यहाँ से हो रही है मेथड की, और एंड यहाँ पे हो रही है। अब इसके अंदर हम फिर इस तरह के टेम्पलेट को यूज कर सकते हैं। तो इससे आपका जो कोड जनरेशन वाला काम है वो काफी आसान हो जाए। फॉर एग्जाम्पल आपने HTML पेजेस जनरेट करने हैं, तो आप ये टेम्पलेट यूज करके आप HTML पेजेस को जनरेट करवा सकते हैं। ये देखें एक और एग्जांपल, टेम्पलेट की यूज हो रही है। इसके अंदर ये ट्रिपल कोड नजर आ रहा है आपको यहाँ पर और यहाँ पर। अभी ये नीचे हमने HTML बॉडी है। अब इसके अंदर टेम्पलेट के अंदर फॉर लूप यूज किए जा सकते हैं। ये फॉर है और एंड फॉर है। ये उसी तरीके से जैसे जनरली हमने एक्सीलियो में देखा था, सिंटैक्स थोड़ा डिफरेंट है, वहाँ स्क्वायर ब्रैकेट यूज हो रहे होते हैं, यहाँ पे ये सिंटैक्स है। और इफ स्टेटमेंट भी इसके अंदर यूज हो सकती है, इफ एंड इफ। ये चीजें हैं टेम्पलेट्स के अंदर। इसके अलावा इसका कोड इसलिए शॉर्ट होता है कि फॉर एग्जांपल आपने स्ट्रिंग एक डिक्लेयर किया, आप इसके अंदर स्ट्रिंग आपने डिक्लेयर किया और साथ उसके पहले आपने एनोटेशन दे दी है एक्सेसर्स। तो इससे क्या होगा कि बैक एंड पे जब वो ऑटोमेटिकली कोड जनरेट हो रहा होता है, तो जावा का कोड जनरेट होगा, तो इस एक लाइन के अगेंस्ट ये जावा का ये पूरा कोड जनरेट हो रहा होगा। यानी कि प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, फिर इसका एक गेटर और फिर इसका सेटर, ये पूरा सेट जो है आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल इसके अंदर ये लिखेंगे एक्सेसर्स स्ट्रिंग नेम, तो वो सारी चीज जावा कंपैटिबल चीजें ऑटोमेटिकली उस जनरेट हो जाएंगी। फिर इसमें आप डेटा एनोटेशन यूज कर सकते हैं, यानी क्लास को एज एन एंटिटी। जनरली हम एंटिटी फ्रेमवर्क में ये चीजें यूज करते हैं, डेटा एनोटेशंस। एंटिटी फ्रेमवर्क क्या होता है? क्यों जी, कोई चीता बैठा हुआ है? एंटिटी फ्रेमवर्क क्या होता है? ORM सुना होगा ना? कोई नहीं, आपको तो पता होगा। नहीं, अच्छा। ORM वेरी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी। ORM ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। जनरली इसमें ये होता है कि आप जब क्लासेस लिखते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में, तो ORM की वजह से उसकी इक्विवेलेंट डेटाबेस रिलेशनल डेटाबेस में टेबल जनरेट हो जाता है। अगर स्प्रेडशीट बनाते हैं तो उसके अंदर रोज इंसर्ट हो जाती है। जैसे कि आप पूरा कोड लिखे, कनेक्शन स्ट्रिंग ये वो एक दफा आप उसको कॉन्फ़िगर कर देते हैं। जैसे आप जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आप कोड लिखना शुरू करते हैं, इंस्टेंसेस बनाते हैं, रन होते हैं, तो सारा उसका कोड को अगर आपने परसिस्ट करना है, परमानेंटली सेव करना है, तो ऑब्जेक्ट्स भी सेव हो जाते हैं उसके अंदर। ये चीज होती है। तो उसके लिए आमतौर से ना ये डेटा की क्लास, ऐसी क्लासेस यूज करते हैं जिनमें एनोटेशन होती है स्पेशलाइज्ड। अभी डेटा क्लास पर्सन का मतलब है कि क्लास है डेटा बेस इक्विवेलेंट के तौर पे, तो इन एनोटेशंस का ये काम होता है। तो ये अब देखिए, ये जो ये नजर आ रहा है आपको एक्सटेंड में, ये अब हमने एक्सटेंड का जैसे आपको थोड़ा सा आइडिया दिया है। अब ये देखिए कोड लिखा हुआ है, ये क्लास है टेक्स्ट जनरेटर, उसके अंदर है टू टेक्स्ट का एक
मेथड है। इस मेथड का ये ट्रिपल कोट नजर आ रहा है आपको, और ये ट्रिपल कोट खत्म कहाँ हो रहा है, इससे कहीं खत्म भी होना है, एंड फॉर यहाँ पे खत्म हो रहा है। हाँ सही है। तो अब ये एक मेथड है टू टेक्स्ट का, इसके अंदर अब हमने ये जो ग्रे में नजर आ रहा है तो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे चीजें आएंगी मॉडल से, रूट डॉट नेम आएगा, ऑल पर्संस। तो बेसिकली हो क्या रहा है, जैसे टेक्स्ट फाइल बताया था, वो टेक्स्ट फाइल सारी जनरेट हो रही है इससे, ये सारा टेम्पलेट लिखने की वजह से। तो हुआ क्या कि हमने ग्रामर लिखी, उसके बाद हमने उसका ट्रांसफॉर्मेशन का कोड लिखा एक्सटेंड में, उस और उसके बाद हमने फिर जब एडिटर में अपनी लैंग्वेज लिखी तो हमारी टेक्स्ट फाइल जनरेट हो गई बिकॉज ऑफ, और वो दैट टेक्स्ट फाइल इज जनरेटेड अकॉर्डिंग टू दिस, जो ट्रांसफॉर्मेशन हमारी लैंग्वेज है उसके मुताबिक। ठीक है जी, तो ये आपको एक ओवरव्यू दे दिया मैंने। मादरत के साथ एक इसका तो देना पड़ेगा असाइनमेंट मुझे। अच्छा जी, वापस नहीं आइएगा फिर क्विज होगा ना? वापस नहीं आना आपने, क्विज जो होना नहीं देना, तो पेन लेने जा रही है। नहीं मांग भी लेते होते, मांगता हूँ चल जाती है। चलें जी निकालें, खुले खुले होके बैठे हैं, बल्कि एक डेस्क पे दो, तीन नहीं। और ये क्लोज बुक है, नो लैपटॉप नो मोबाइल्स, बंद कर दें, दिमाग का इस्तेमाल है। पेन पेन इस्तेमाल करें, मोबाइल लैपटॉप तो पेन ही लेंगे, लैपटॉप क्लोज कर रखा है। हैं? बस आते बबी बबी स्टेज में निकल जाती है। अच्छा ये तैयार है, चलें, बिस्मिल्लाह। कर रहा हूँ बड़ा। Suggest possible implementation of legacy payment adapter class। आपको ये नजर आएगी लेफ्ट बॉटम पे, legacy payment adapter क्लास है, एंड पेमेंट सिस्टम legacy जो कि लेफ्ट पे उसके ऊपर है क्लास। मेथड टू गेट फॉलोइंग आउटपुट इन द मेन मेथड। क्या किया है मैंने? हाँ बिल्कुल, ये लिखा हुआ आना चाहिए, आउटपुट प्रोसेसिंग legacy पेमेंट, ये आउटपुट प्रिंट होनी चाहिए जब ये 3 लाइन का कोड हम लिखें। इसमें लिखे पेमेंट क्लाइंट के मेन मेथड में, जब 3 लाइन का कोड लिखें तो ये आउटपुट जनरेट होनी चाहिए। तो क्या कोड होना चाहिए? डायरेक्ट भी प्रिंट लाइन लिख सकते हैं, लेकिन पैटर्न इस्तेमाल करके जो लॉजिक है वो यूज करनी है। काफी डल हो गई इसकी लाइट, ये बेहतर है इसमें। जरूर वो रिजर्व पाएगा, बड़ी बात है। बड़ी बात है। बड़ी बात है। एकदम नहीं काम नहीं कर रहा है बिजली से। मेन मेथड तो लिखा हुआ है 3 लाइनों का। आपने लेगेसी पेमेंट एडॉप्टर की इंप्लीमेंटेशन लिखनी है, और
पेमेंट सिस्टम लिखी है, इसी क्लास की इम्प्लीमेंटेशन लिखनी है इस तरह कि जो ग्रीन में लिखी हुई टेक्स्ट है ये जनरेट हो, लेकिन लॉजिक होनी चाहिए ये वाली आपकी डॉक्टर वाली, सीधा सीधा सिस्टम आउट में लिखना। डॉक्टर किसी को बताना आपने ऐसा की क्लास में कि ये डर लोग केस कराइए इसको, यही करेंगे पॉइंट, ठीक है। कौन करेगा? सी आर आप मुझे लेफ्ट साइड बैठे तो काफी डल है।
हाँ जी 2 मिनट रहेंगे, वो भी आ जी 2-3 मिनट। हाँ जी वॉलंटियर और अगली सबमिशन। आइए टाइम जाओ। अली तो भी तो मैंने सोचा है बारे में। हाँ जी सोल्यूशन। तो इसमें आपने एक एडॉप्टर की इम्प्लीमेंटेशन लिखनी थी और एक लिगेसी सिस्टम की इम्प्लीमेंटेशन लिखनी थी। प्रोसेस पेमेंट को ओवरराइड करना था और बस इसको कॉल कर लेना था लिगेसी वाले प्रोसेस को इसके अंदर। टिपिकल इसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है अडॉप्टर की, जो आपको पढ़ाई हुई है मैंने ना। इसका मेथड को आप इस मेथड में कॉल करते हैं, डेलीगेशन करते हैं ना, ये डेलीगेशन हुई है। ये डेलीगेशन हुई है कि ये इसके अंदर इसको कॉल किया आपने और ये मैच करता है प्रोसेस पेमेंट जो है, ये उस जो इंटरफेस है उसके साथ मैच कर रहा होता है।